welcome to all in a new session of Business Studies and Management. Today, we are going to extend our discussion on the components of business environment. Yes, in our previous classes, we have already discussed what are the various components that have impact on business and the factors, the planning, the policy, the everything what we do in the business, that is by considering the environmental factor. Before analyzing the factors, we cannot do any strong decision. Okay, because if we will take any strong decision, then that will definitely harm our business, our policy, our plan, our objective. We could not fulfill those objectives. Okay, so because of which thing we must have proper knowledge about our environmental factor, who or which factor affecting us in which manner, so that we can make policies or adjust ourselves to tackle those situations. Okay, so as we have discussed, basically the internal environment and the micro factor, those are somehow within our control, within the control of the business. It means if business try to do, or if business try some extra effort, okay, if they try to do some, adopt some new policies, adopt some new techniques, adopt some new plan, then they can tackle or they can handle the micro factors. Okay, and internal factor as usual, those are within the organization, within the business, so those are definitely handled by the business and the management team. Okay, but the main factor what we consider as the environmental factor, that is the macro factor, because the macro factor are also known as the general factor, because these are such a thing which are going to affect all the organization, full country, all means all the area, individually, not individually, but what? Generally to all. Okay, generally to all. Those will definitely impact all organization in a same manner. Okay, so that's why, and they cannot wait, they cannot consult us that should I change, should I go, as like the customer supplier. Before they switch to another company, they definitely warn you कि देखो अगर ये नहीं करोगे तो मैं कंपनी चेंज कर दूंगा, मैं आपको सप्लाई नहीं करूंगा, मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, है कि नहीं। आपका जो है कंपटीटर वो भी बोल देगा सर आप मतलब कंपटीशन से बाहर काम कर रहे हैं, हम भी यूनियन से बाहर चले जाएंगे, है कि नहीं। और नहीं तो जो है अपना मीडिया इंटरमीडियरीज वो भी बोलेंगे कि सर कमीशन बढ़ा दो, नहीं तो हम आपसे नाता तोड़ लेंगे, हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, है कि नहीं। दैट मीन्स वेन एवर दे आर थिंकिंग टू स्विच टू अनदर कंपनी और लेफ्ट योर सपोर्ट, देन दे विल वार्न यू कि सर हम छोड़ के जाने वाले हैं, आप देखो अच्छा पॉलिसी करना है तो करो, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे, ये सुनो। तो उसके हिसाब से आप, दैट इज ए वार्निंग सिग्नल कि यस आप कर सकते हो कि हाँ चलो मैं आपको मतलब आपका जो भी है रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी नीड है मैं फुलफिल कर दूंगा, आप मेरे साथ रहो, है कि नहीं। सो वी कैन टेक डिसीजन टू कंट्रोल दोस थिंग्स, दैट्स व्हाई we can say the micro factor are within our control, because before they leaving they warn us so that we can tackle them, we can handle them. Okay, we can keep them with us by giving them some extra benefits, some extra efforts. But the macro factor are like that, they will not give you any signal कि हाँ भाई मैं बदलने वाला हूँ, है कि नहीं। अभी जैसे देखो जो दैट इज द लेटेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, अभी जो अगर हम देखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो कोरोना आ गया, है कि नहीं, कोविड-19, वो थोड़ी ना हमें पता था जब भी वो मार्च में आया, है कि नहीं। मार्च में तो चलो हमारे इंडिया में आया और बाहर में कितना, चलो तभी भी वो एक वार्निंग दिया था, है कि नहीं। जब भी दिसंबर जनवरी में जब भी हमारे मतलब फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा था, तभी हमारे लिए भी थोड़ा क्या था, मतलब इट इज लाइक द सिग्नल। अगर तब भी हम वो चीज को अच्छे से एनालाइज कर लेते तो इतना जो ज्यादा इम्पैक्ट हुआ उतना नहीं होता, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग ने कभी मतलब कब शुरू किया, मार्च में, क्लियर, मार्च एंड में हमने शुरू किया कि चलो अभी हमें
ये फॉलो करना है बिकॉज सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है कि नहीं। तो वो भी हमें थोड़ा थोड़ा वार्निंग दिया था, बट वो छोड़ो, फिर भी दिसंबर तक हमें थोड़ी ना पता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा पूरा मतलब 2 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर मतलब 3 महीने का, ठीक है, पूरा पूरा का पूरा 2 क्वार्टर, अभी तो 3rd क्वार्टर आने वाला है कि नहीं, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है कि नहीं, हमें थोड़ी ना पता था, तो उसका सिग्नल नहीं था। तो उसके हिसाब से सोचो, अगर हमें उसके हिसाब से कुछ भी मिलता सिग्नल, तो हम क्या करते, हम ये जो हैवी एक्सपेंसेस बंद कर देते है कि नहीं, कंपनी में जो एम्प्लॉइज है उन लोगों के सैलरी थोड़ा कट कर देते, क्योंकि उनको समझना है कि चलो आगे भी आपको देना है ना, तो अभी थोड़ा कम कर लो, काम थोड़ा ज्यादा करवा लेते, क्योंकि 6 महीने बंद होने वाला है कि नहीं। आप लोग देखे होगा ना कि अगर 2 दिन बंद होने वाला है तो आपको क्या किया जाता है, ज्यादा होमवर्क दिया जाता है ताकि आप लोग एंगेज रहो। तो वैसे ही आगे बंद होने वाला है तो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर लो ताकि हम वो टाइम पे अच्छा सेल कर पाए। वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ ये तो अपने अपने दिमाग से ही काम करते हैं। ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ये किसी को वार्निंग नहीं देते, किसी के हिसाब से नहीं आते, अपने आप खुद बे खुद चेंज हो जाते हैं। दैट इज मींस बेस्ड अपॉन एक, अगर ये और ये जो है ना, ये जो 8 एनवायरमेंटल फैक्टर, these are definitely interlinked with each other। अगर कोई एक चेंज हो गया ना तो उसके साथ दूसरा तीसरा भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, इंटरलिंक्ड है। और ऐसा नेचर है जो कि है सब बागी है, बागी मतलब किसी के बात नहीं सुनते है कि नहीं, अपने दिमाग में जो आता है अपने हिसाब से जो आता है जब भी कुछ भी कर लेते हैं, कभी भी चेंज हो गया, कभी भी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव, कभी भी कुछ। वी कैन नॉट judge, we cannot estimate, we cannot forecast, we cannot imagine ki what are going to happen in the near future. So that's why I see how difficult it is. So for that reason we must go for proper analysis, proper knowledge about those things, so that we can handle or we can tackle, not we cannot handle them but we can handle ourselves। clear? ये एनवायरमेंटल चेंज के वजह से हमें जो इम्पैक्ट होने वाला था हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं जो इंटरनल फैक्टर माइक्रो फैक्टर उसके हिसाब से काम करते हैं, बट मैक्रो फैक्टर जो करता है उसके हिसाब से हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग हमारे बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों का इम्पैक्ट जनरल इम्पैक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली है कि चलो भाई मेरा बात सुन लो, मेरा बात सुन लो, मेरा बात सुन लो, कोई कोई बोलेगा नहीं, इन लोगों का इम्पैक्ट जनरल इम्पैक्ट रहता है कि नहीं। तो ये लोग किसी का भी बात नहीं सुनने वाले, क्योंकि इन लोगों के पास इमोशन दिमाग नहीं है, क्योंकि these are all are what? These are all are non-biotic factor। ये इसमें कौन सा बायोटिक है क्या, इसमें से कोई भी आपका इमोशन नहीं समझेगा, वो अपने आप में चेंज होगा। वो सोसाइटी ले लो, कल्चर ले लो, सोसाइटी थोड़ा थोड़ा है बट कल्चर, लॉ, पॉलिटी, ओके, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, नेचुरल, ग्लोबल, ये सारे नॉन बायोटिक फैक्टर हैं, ये हमारे नहीं सुनने वाले हैं, है कि नहीं, ये अपने हिसाब से चेंज होंगे। तो हमें क्या करना है, उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना है। अगर वो चेंज हो गया तो हमें भी चेंज होना है, ठीक है, तभी हम अपने बिजनेस को इजिली सस्टेन कर पाएंगे और अपना बिजनेस डे टू डे बिजनेस को रन कर पाएंगे, और वी कैन थिंक टू गो फॉर एक्सपांशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर? आ गया ना समझ में? तो ये होता है, दोज आर नोन एज द मैक्रो फैक्टर एंड दैट इज द वैल्यू एंड दैट इज द वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो फैक्टर। कि मैक्रो फैक्टर सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं जनरल फैक्टर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरल फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये किसी के हिसाब से काम नहीं करता, ये अपने अपने हिसाब से ही काम करता है, और सबको इंडिविजुअली मींस फॉर देम, फॉर दिस एनवायरनमेंट ऑल आर इक्वल। कोई किसी के साथ मतलब कोई किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई किसी को कम नहीं, दैट इज द इक्वल इंपॉर्टेंस। ओके, सो ये होता है, और इसको हम जो बोलते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं जाता, ये पूरा जनरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाता है, ठीक है, और ये ना स्पेसिफिक फैक्टर को कोई कंसीडर नहीं करता, ये सारे के सारे को एक साथ इंपैक्ट डालता है, ठीक है। और क्या है, ये जो है ना, ये एक टाइप के मतलब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, बिकॉज बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल दोज फैक्टर्स एट ऑल। क्लियर? बिजनेस हैज टू टेक डिसीजन, हैज टू एडजस्ट themselves to adjust in that particular society, to adjust in that particular environment. Okay, so today we are going to discuss about those macro factors. But student, ये जो factors है ना, ये
फैक्टर्स को हम इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और इसके अंदर आपको बहुत सारे चीजों को जानना पड़ेगा. यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दोज मींस द थिंग्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दोज फैक्टर्स, लाइक लीगल में क्या क्या आता है, पॉलिटिकल में क्या क्या आता है. ठीक है, सो हम एक क्लास में ये जो 8 फैक्टर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते. ये जो क्लास को मैक्रो फैक्टर्स को लिए हम 2 क्लास लेंगे. ठीक है, आज के क्लास में हम 1 2 3 4 जो कि सोशल, कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल खत्म करेंगे, और देन सेकेंड क्लास, क्लियर, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द अदर 4, दैट इज इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड ग्लोबल. Okay, so let's start with the social environment. So let us start discussion with the social environment. As student, हमको पता है कि social environment मतलब the environment in which we are living, we are running our business, or where we have our company, we have our corporate office, we have our production house. Okay, we have our channel of distribution, everything that is we are doing our business in the proper society. Yes or no? So social means the society where business is operated, the society where the business is operated. So business जहां पे ऑपरेट होता है उसी को हम बोलते हैं सोसाइटी. ठीक है, जैसे कि हम लोग देते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या होता है. सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द पीपल, है कि नहीं? सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द पीपल, द नेचुरल थिंग्स, ओके, एनिमल्स, है कि नहीं? सोसाइटी में हमारे चारों तरफ क्या क्या रहता है? हमारे लोग रहते हैं, क्लियर. लोगों के साथ नेचुरल थिंग्स रहता है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, ये वगैरह सब रहता है. एनिमल्स रहते हैं, है कि नहीं? तो ये जो थिंग्स होते हैं ना, ये अपने अपने हिसाब से चेंज होते हैं, क्योंकि देखो हर किसी का अपना एक लाइफ होता है कि नहीं? नेचुरल थिंग्स अपने हिसाब से चेंज होते हैं, एनिमल्स उनका एक सेपरेट लाइफ होता है, पीपल लोगों का भी एक लाइफ होता है. ठीक है, तो ये जो सोसाइटी में, ठीक है, जहां पे हम अपना, सोचो कि हम एक एरिया में अपना बिजनेस सेटअप किए. ठीक है, ये है अपना बिजनेस, ये एरिया में अपना बिजनेस सेटअप है. तो यहाँ पे सारे के सारे जो क्या है, ये जो सारे हैं अपने फैक्टर्स, है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि पीपल, नेचुरल थिंग, एनिमल्स जो हैं. ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये एरिया में हमें क्या करना है, एवरी हमारा जो काम है, प्रोडक्शन, प्लानिंग, क्लियर, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा, क्लियर, हमारा मार्केटिंग, हमारा सेलिंग, हमारा रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी मेन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ए बिजनेस आर गोइंग टू हैपन इन दिस सोसाइटी. तो इसमें क्या इंपैक्ट आता है कि ये जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं, ठीक है, लोगों का अलग अलग रहने का स्टाइल होता है. ठीक है, उनका पैटर्न अलग रहता है, क्लियर. तो उनमें से हमें क्या करना है, इनमें से कोई कोई है जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है. कौन हमारे कंट्रोल में रहता है? जैसे कि ये पीपल में से कोई कोई रहेगा हमारा एम्प्लॉय, सो दे आर इन आवर कंट्रोल, एंड द कस्टमर, दे आर इन आवर कंट्रोल, द सप्लायर, दे आर इन आवर कंट्रोल. बट उन लोगों को छोड़ने के बाद जो बाकी के लोग हैं, जिनके साथ हमारा बिजनेस का कोई लिंकअप नहीं है, वो थोड़ी ना हमारे साथ काम करेंगे, वो थोड़ी ना हमारी सुनेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, है कि नहीं? तो दैट इज द मेन डिफिकल्टी कि सोसाइटी में कब क्या चेंज हो जाए, दैट इज नो, वी हैव नो इंफॉर्मेशन, वी हैव नो अलर्ट. सो हमें क्या करना है, वो सोसाइटी में जब भी हमें कोई एक प्लान इंप्लीमेंट करना है, कोई भी एक बिजनेस डिसीजन हमें लेना है, तो हमें क्या करना है, जो लोग हमारे साथ हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो लोग नहीं है उनके लिए हमें क्या करना है, स्पेशल पॉलिसी बनाना है, ताकि अगर उन लोगों का दिमाग चेंज हो जाए, माइंड चेंज हो जाए, तो हम वो टाइम पे उन लोगों को कैसे हैंडल कर पाए, और उन लोगों के इम्पैक्ट के काम करने के हिसाब से हम अपना जो है क्या कि इम्पैक्ट, उसको हम कैसे सुधार पाए और कैसे हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि हमें उतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. ओके, क्लियर?
तो ये जो सोसाइटी में क्या रहता है, सोसाइटी में जैसे कि नेचुरल थिंग लाइक नेचुरल कैलामिटीज आ जाता है कभी कभी, नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, ये चीज हम नेचुरल एनवायरनमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या होता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि नेचुरल कैलामिटी कभी कभी आ जाता है। नेचुरल कैलामिटी में लाइक हेल्थ को रिलेटेड, और नहीं तो कभी तूफान आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, कभी फ्लड आ गया, है कि नहीं। तो ये जो सारे टाइप आते हैं तो इसके वजह से भी हमें इंपैक्ट होता है कि नहीं। जैसे मैंने बोला है कि ये जो सारे के सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं इंटरलिंक्ड हैं, तो सोसाइटी के साथ लिंक किसका है, नेचुरल एनवायरनमेंट का डेफिनेटली लिंक अप है। क्योंकि नेचुरल, अगर नेचर में कुछ चेंज हो जाए तो नेचर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ये सुन लो। और तो सोसाइटी में हम हो गए, पीपल हो गया, नेचुरल थिंग्स हो गया, देन एनिमल्स भी रहते हैं। ये एनिमल्स भी कभी कभी एनिमल के वजह से भी कभी कभी बीमारियां हो जाते हैं, है कि नहीं। और एनिमल्स कहाँ पे कौन सा एनिमल है उसके हिसाब से भी हमारा बिजनेस सेटअप करता है कि नहीं। कि सोचो आपका बिजनेस जो है कि पोल्ट्री फार्म के ऊपर है, पोल्ट्री फार्म मतलब यू आर डेवलपिंग और यू आर आप काम कर रहे हो बिजनेस, क्या कि आप कोई भी पोल्ट्री फार्म ले लो, कि कोई आप मुर्गी का कर रहे हो, है कि नहीं, हैन, और नहीं तो कोई काव, गोट, ये सब आप कर रहे हो, ठीक है। तो वो जगह पे अगर वो एनिमल को कुछ बीमारी हो जाए, वो सब लोग मर जाएंगे, तो क्या होगा, तो आपको वहां से बिजनेस बंद करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको वहां पे और एनिमल नहीं मिलेंगे। सोचो कि वहां पे वो एनिमल खत्म हो गए, तो आपको क्या करना है, कहीं एक नया जगह पे जाना है, प्रोडक्शन हाउस आपको सेट करना है। तो दैट इज द इम्पैक्ट, क्लियर। तो सोसाइटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैव इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस, ओके, व्हिच वी हैव टू कंसीडर, ओके, एंड वी हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दोज थिंग्स। और आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है अपना सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट दोनों ना एक जैसे होते हैं, एक मतलब मिक्सअप होते हैं ज्यादा, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन्हीं से, उन लोगों से ही हमारा कल्चर रिलेटेड रहता है कि नहीं। आवर कल्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ आवर सोसाइटी, ये सुनो। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ईस्ट जोन में, ईस्ट साइड में जो लोग रहते हैं उसको हम सोसाइटी बोलते हैं, उन लोगों का कल्चर अलग रहता है अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी, दे हैव देयर ओन कल्चर। अगर हम जाएंगे वेस्ट में, उन लोगों का जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों का कल्चर अलग रहता है कि नहीं। अगर हम जाएंगे नॉर्थ में और नहीं तो वेस्ट में, तो जैसे लोग रहते हैं उन लोगों का कल्चर भी वैसा रहता है कि नहीं। कल्चर इट मीन्स, अगर हम एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम यूरोप में चले जाएंगे तो उन लोगों का कल्चर अलग रहता है अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी, दे हैव देयर ओन कल्चर। अगर हम चले जाएंगे अमेरिका में, वहां पे अलग कल्चर है, दैट इज द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द कल्चर, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी कल्चर दोनों ना मिक्स्ड अप होते हैं, तो इसलिए आप लोग देखोगे आपके बुक में भी दिया जाता है कि सोशियो कल्चरल, मतलब सोसाइटी एंड कल्चर को हम एक साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया ना आपको सोसाइटी। देन हम इसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं, बट ये जो थिंग्स है ना इंटरलिंक्ड थिंग्स है, मतलब जो भी इंपैक्ट होता है सोसाइटी और कल्चर दोनों के साथ ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, अभी कल्चर को समझेंगे, फिर सोसाइटी और कल्चर के साथ क्या क्या रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना है व्हाइल टेकिंग आवर डिसीजन, व्हाइल डूइंग आवर बिजनेस, वो चीज को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक तो सोसाइटी, ओके। नेक्स्ट आता है अपना कल्चर। क्या है कल्चर, कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या आता है कि कल्चरल मतलब द कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब द एटीट्यूड, ओके, द एटीट्यूड, बिहेवियर, द लाइफस्टाइल, attitude, behavior, lifestyle, beliefs, okay, ideas, trust, taste, preference, etc., etc. of the society, है कि नहीं। वो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों का क्या एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड आप लोग अगर देखोगे कि हम लोग, मतलब ये तो बहुत ही फेमस है कि एशिया में, इंडिया में लोगों का एटीट्यूड बहुत ही सिंपल रहता है कि नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, क्योंकि उन लोगों को आप कभी भी कोई हेल्प के लिए बोलो तो वो लोग डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। बट अगर आप कहीं बाहर कंट्री चले जाते हो तो वहां पे लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि यहाँ इंडिया में जैसे लोग का एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, आप किसी को भी मतलब हेल्प के लिए बोलो तो वो लोग कर देते हैं, पर बाहर कंट्री में वैसा नहीं होता है, सब अपने अपने काम में ही बिजी रहते हैं, आपको कोई हेल्प करने नहीं आता है। तो द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द कल्चर, clear, so your attitude, your behavior,
योर लाइफस्टाइल, आप कैसे रहते हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लाइफस्टाइल। ईस्टर्न मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पहनना, खाना, पूजा करना, ये सब अलग रहता है। और अगर हम वेस्टर्न कंट्री चले जाए, वेस्टर्न मतलब बाहर के कंट्री में, तो वहां पे क्या रहता है, उन लोगों का लाइफस्टाइल भी अलग रहता है कि नहीं। सो दैट इज द लाइफस्टाइल। द बिलीव्स, बिलीव मतलब वो लोग किसके ऊपर बिलीव करते हैं। कोई कोई गॉड के ऊपर बिलीव करता है, जो है हमारे है ना जो 33 वेराइटीज ऑफ गॉड, क्लियर। कोई हनुमान जी को पूजा करता है, कोई राम जी को पूजा करता है, कोई लक्ष्मी को पूजा करता है, कोई किसको, बट और दूसरों के क्या रहता है, कोई अल्लाह मतलब एक ही, क्लियर। उन लोगों का एक ही गॉड है मुस्लिम में, ठीक है। और जो कि बुद्धिज्म, वो लोग एक ही गॉड को पूजा करते हैं, बुद्ध को ओनली, ओके, भगवान बुद्ध को। और अगर हम क्रिश्चियन में चले जाएं तो वो लोग क्या मतलब यीशु क्रिस्ट को पूजा करते हैं, है कि नहीं। तो बिलीव, कोई किसके ऊपर बिलीव करता है, हम लोगों का बिलीव पूरा डिफरेंट, वैरायटी हो, उन लोगों का डिफरेंट होता है। तो दैट इज द बिलीव। सो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वी हैव आवर ओन द बिलीव, है कि नहीं। लोगों का बिलीव उसके हिसाब से रहता है, उन लोगों का आइडिया। वैसे जैसे आपका बिहेवियर, जैसे आपका मेंटालिटी, जैसे आपका लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, उसके हिसाब से ही आपको आइडियाज आएंगे, है कि नहीं। अगर सोचो, अगर आप एक वेल एजुकेटेड किसी को बोलोगे कि आपके पास अगर पैसा दिया जाएगा आपको, तो आप क्या करोगे, तो वो ना कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा, है कि नहीं। वो क्या बोलेगा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब ताकि पॉजिटिव थिंग्स होगा, तो उसके दिमाग में वो आइडिया आता है। अगर कोई अनपढ़ गवार लोगों को, और जो कि मतलब कुछ भी काम नहीं करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, तो उन लोगों के अगर आप कुछ पैसा दोगे, बोलोगे इससे आप क्या करोगे, तो उन लोगों का आइडिया कुछ नेगेटिव आएगा। सो दैट इज द आइडिया, दैट इज योर सोसाइटी। आप कौन से सोसाइटी में रहते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन योर आइडिया एंड योर ट्रस्ट। आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, ठीक है। आपका टेस्ट क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, ये जो सारे चीजें होते हैं ना, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। यस और नो? यस, डेफिनेटली, ठीक है। सो ये जो होता है कि सोसाइटी एंड कल्चर, ये दो होते हैं, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब ऐसे कंबाइन होते हैं जिसको कि हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हम सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट कल्चर, एंड कल्चर इज आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, है कि नहीं। कल्चर कहां से आया, सोसाइटी से ही आया। हम लोग अभी जो फॉलो कर रहे हैं अपना कल्चर, वो कहां से आया, फ्रॉम द पास्ट, है कि नहीं, पास्ट से। कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स वो फॉलो कर रहे हैं, वो पेरेंट्स कहां से लाए, वो पेरेंट्स ने देखा उनके पेरेंट्स वो फॉलो करते थे, वो कहां से सीखे, उनके पेरेंट्स, फोर पेरेंट्स, तो ऐसे ही आता आता गया सोसाइटी में। ऐसे ही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आता है, हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू मींस व्हाट आवर कल्चर, कि हमारा कल्चर क्या है, बिलीव क्या है, किसको पूजा करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कौन से सेलिब्रेशन करना है, किसको नहीं करना है, किसको पूजा करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे सोसाइटी से ही आते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने अपने आप से मतलब खुद को डेवलप हो जाते हैं। तो द कल्चर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी, एंड सोसाइटी में डेफिनेटली कल्चर होता है। अगर सोसाइटी में कल्चर ना हो तो लोगों मतलब सोसाइटी नहीं है, तो सोसाइटी हमने क्यों डेवलप किया था। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, सोसाइटी इज डेवलप्ड फॉर ओन बेनिफिट, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, है कि नहीं। पहले तो लोग क्या करते थे, मतलब रेफ्यूजी की तरह इधर उधर घूमते रहते थे, फल वगैरह में डिपेंड होते थे। बट जब उन लोगों को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब फल वगैरह भी, मतलब जो फ्रूट्स वगैरह खाते थे पेट से, वो लोग भी खत्म हो गया। एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते थे, वो लोग भी खत्म हो गया, और उनको अटैक भी होता था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, अभी मिलके एक झुंड बना के रहना है, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी। तो अगर हम झुंड बना के रहेंगे तो दूसरे एनिमल्स जब हम पे अटैक करेंगे, हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, और हम एक जगह पर रहकर कल्टीवेट करके करेंगे, और एक दूसरे का टाइम पे हेल्प करेंगे। दैट इज द सोसाइटी, है कि नहीं। वहीं से वो जो कल्चर, वो जो बिलीफ, वो लोगों का बिलीफ था कि हाँ, हम एक साथ रहेंगे तो ये फायदा मिलेगा, ये नेगेटिव थिंग्स जाएंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये जो सोसाइटी कल्चर दोनों रहता है, और इसी के अंदर हमारा बिजनेस चलता है कि नहीं। अपना बिजनेस मीन्स वी कैन से द स्टार्टिंग, मतलब बिजनेस जो वर्ड है ना, बिजनेस वर्ड मतलब बिजनेस में जो भी कुछ होता है, एवरीथिंग those are happen in the society and according to the culture. So that's why you can see, we can say that these two factors, these two environment have direct impact over our business, and those are also uncontrollable, क्योंकि जैसे मैंने बोला, कुछ सोसाइटी, कुछ कल्चर हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि ले लो, अगर आप एक क्रिश्चियन ओनर हो, आपका एक क्रिश्चियन कंपनी है, ठीक है, मीन्स आपका एक कंपनी है एंड यू आर ए क्रिश्चियन, ठीक है, मतलब आप अगर क्रिश्चियन हो तो आप कौन से धर्म को पूजा करोगे, डेफिनेटली यू आर फॉलोइंग द जीसस क्रिस्ट, है कि नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो है जो हिंदू वाला जो है, वो लोग आपको मतलब डेफिनेटली फॉलो करेगा, बट इतना प्रेफरेंस नहीं दोगे। जैसे कि ये हो गया ना एक क्रिश्चियन का, दूसरा हो गया, एक ले लो कि एक हिंदू
हिंदू ओनर है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, सोचो कि आप लोग एक पहले वो जो हिंदू कंपनी में काम करते थे, तो आपको ना वो जो बोनस, ठीक है, बोनस और ले लो जो कि एम्यूनिटीज, फायदा, एवरीथिंग, वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम में मिलता था। जैसे हिंदू का रहता है, कभी दिवाली रहता है, ले लो दिवाली और होली, और नहीं तो कुछ भी, तो ले लो कि आपको दिवाली के टाइम पे आपको बोनस मिलता था, तो वो टाइम पे आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाते थे। और आपका कल्चर उन लोगों ने आपको कह दिया कि नहीं, अगर आप सोचो कि एक ले लो एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। सोचो कि आप पहले एक हिंदू कंपनी में काम करते थे, ठीक है, मतलब हिंदू कंपनी मतलब जहां पे कि वो ओनर हिंदू, जैसे कि मैंने बोला कि ओनर जो रहेगा वो वही कल्चर को फॉलो करेगा, है कि नहीं, और एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करेगा कि आप यही कल्चर फॉलो करो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कल्चर आई एम ग्रोइंग, आई एम डेवलपिंग, तो आपको भी यही कल्चर फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप एक कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो तो उन लोगों का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, पॉलिसी होता है, यू हैव टू फॉलो दैट, एंड ये जो रूल रेगुलेशन में उनका एक कल्चर भी रहता है, दैट इज यू हैव टू फॉलो, सो यू हैव टू फॉलो। आप एक हिंदू कंपनी में गए, आपको हिंदू रूल्स को फॉलो करना है, हिंदू कल्चर्स को फॉलो करना है, ठीक है। फिर आप और एक क्रिश्चियन कंपनी में चले गए, है कि नहीं, क्रिश्चियन कंपनी में चले गए, मतलब वहां का जो ओनर है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो वो भी बोलेगा कि हाँ, तो आप लोगों को भी क्या है कि आप लोगों को भी हमारे हिसाब से क्रिश्चियन, मतलब क्रिश्चियन कल्चर को कुछ कुछ फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। लाइक उन लोगों का पहनने का, खाने का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे कि आप हिंदू कंपनी में जाओगे तो वेज नॉन वेज मिक्स मिलता है, बट क्रिश्चियन कंपनी में नॉन वेज नहीं मिलता है, वो लोग सिर्फ वेज के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया, तो ये दो कंपनी हो गया। और नाउ मैं जो बोला, आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लाइक यू बिलोंग्स टू ए मुस्लिम कम्युनिटी, है कि नहीं, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ओके, और आप पहले काम करते थे एक हिंदू कंपनी में और अभी काम कर रहे हो एक क्रिश्चियन कंपनी में। सोचो क्या हो गया आपका, एज अ मुस्लिम यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर, योर बिलीव, योर आइडिया, एवरीथिंग डिफरेंट, क्लियर, टोटली डिफरेंट somehow from Hindu and Christian, yes or no, but आप जब ये हिंदू कंपनी में ज्वाइन किए, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं, जैसे कि वेज नॉन वेज, ठीक है, और पहनने का, खाने का, पीने का, एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो। तो क्या हो गया, देखो, यू बिलोंग्स टू ए सोशल मुस्लिम सोसाइटी, यू हैव डिफरेंट कल्चर, बट एक कंपनी के हिसाब से आप लोग कंट्रोल में आ गए। मैं जो बोल रहा हूँ, देखो ये जो है ना, इसमें से कोई है जो कि हमारे कंट्रोल में है, जो मैंने बोला कि सम पीपल आर इन योर कंट्रोल, सम नेचुरल फैक्टर्स आर इन योर कंट्रोल, है कि नहीं। तो जो आपके कंट्रोल में है उसको आप अपने दिमाग से काम करवा सकते हो, बट सारे के सारे नहीं है। सोचो कि एक मुस्लिम को आपने अपने कंपनी में काम दिया, उसका नेचर, उसका कल्चर आपने चेंज करवा दिया, बट बाकी जो है पूरा कम्युनिटी, उनका चेंज कर पाओगे नहीं, उन लोग जो भी करेंगे डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा, है कि नहीं। सो दैट इज द थिंग, आ रहा है समझ में। तो फिर देखो, फिर ये उसका माना हिंदू में गया था, उसका कुछ पैटर्न अलग हो गया था। सुनो कि ये जो मुस्लिम है, ये वहां पे 5 साल काम किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका भी दिमाग चेंज हो गया, है कि नहीं, वो मतलब यूज्ड टू हो गया, फॉलो करने लगा। फिर उसका कंपनी चेंज हो गया, वो आ गया कहाँ पे, एक क्रिश्चियन कंपनी में आ गया, फिर उसका कुछ और नया हो गया, है कि नहीं, और कुछ नया, और नया मतलब आपका, मतलब जो ये फॉलो करता था अभी उसका पूरा अपोजिट हो गया, है कि नहीं। तो क्या हुआ, तो देखो इसका मतलब है कि इसमें से ये जो सोसाइटी कल्चर में से कुछ सोशल फैक्टर, कुछ कल्चर वी कैन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, बिकॉज दे आर आवर एम्प्लॉय, दे आर आवर कस्टमर, दे आर आवर सप्लायर्स, ठीक है। तो उसके दिमाग को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, बाय गिविंग देम सम बेनिफिट्स, बट बाकी के जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए आपको स्पेशल पॉलिसी बनाना है, ठीक है। तो क्या है वो चीजें, देखो हम डिस्कस करेंगे अभी कि ये जो सोशल एंड कल्चरल थिंग में क्या क्या ऐसा फैक्टर्स आता है, ठीक है, जिसको कि आपको स्पेशली मतलब कंसिडर करना है व्हाइल यू आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, ठीक है। तो इसको जो है कि हमारा 1 और 2 वाला क्या है, सोशल एंड कल्चरल, ओके। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या क्या रहता है, जैसे कि सबसे पहले लोगों का डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब सोसाइटी में आता है डेमोग्राफी का मतलब क्या है, जैसे ये मैंने आपको बता दिया है। डेमोग्राफिक मतलब योर मतलब लिटरेसी, ओके,
लिटरेसी मतलब कितना पढ़ाई वगैरह है और क्या है, लाइक आपका जेंडर, ओके, लिटरेसी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, लिटरेसी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, योर ऑक्यूपेशन, ओके, योर एजुकेशन, मीन्स डेमोग्राफिक फैक्टर हम बोल सकते हैं कि द पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोगों को पूछते हैं वो सारे चीजों को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, आपका कंपनी कौन से एरिया में है, उन लोगों का कल्चर क्या है, उन लोगों का डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू टेक डिसीजन। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए गारमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गारमेंट आपका बिजनेस है, तो डेमोग्राफिक फैक्टर के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ता है कि नहीं। तो ले लो कि आपने बोला कि हाँ हम गारमेंट प्रोडक्शन करेंगे, तो जैसे हमने बोला कि जेंडर, ठीक है, मेल है और फीमेल है, तो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस मेल आइटम और फीमेल आइटम, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैरिटल स्टेटस के हिसाब से आप प्रोड्यूस करोगे कि सिंगल वाला आइटम कि कपल वाला आइटम, आ रहा है समझ में। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक केयर कि उसके हिसाब से ही आपको प्लान पॉलिसी करना पड़ेगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया ना डेमोग्राफिक फैक्टर। देन क्या आता है कि कस्टम, ठीक है, कस्टम जिसको हम बोलते हैं कस्टम, रिचुअल्स मतलब जो प्रोसीजर हम क्या क्या फॉलो करते हैं, लाइक अगर मैरिज होता है तो उसका प्रोसेस अलग रहता है, जिसको हम बोलते हैं रिचुअल्स, मतलब पूजा पाठ करने का तरीका को हम बोलते हैं रिचुअल्स, ठीक है। सो कस्टम, रिचुअल, रिलीजियस एक्टिविटी मतलब हम क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको मानते हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से, है कि नहीं। सोचो कि आपका बिजनेस अगर कुछ पूजा रिलेटेड आइटम को आप सेल करते हो, तो अगर आप एक हिंदू कम्युनिटी में बिजनेस अपना ओपन करोगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट इफ यू आर ओपनिंग इनटू ए क्रिश्चियन कम्युनिटी बट आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का उतना मतलब रिचुअल एक्टिविटीज और मतलब ये जो गॉड को रिलेटेड एक्टिविटी उतना नहीं होते, है कि नहीं, साल में एक दो बार बस। बट हिंदू के यहाँ 12 महीने में 13 फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होगा, है कि नहीं। तो दोज द थिंग, ओके। नेक्स्ट होता है कल्चर, लाइफस्टाइल, ये सारे चीजों को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। कल्चर, लाइफस्टाइल ये तो बोल दिया सारा, है कि नहीं। बाकी हो गया रिचुअल्स, ओके, देन रिलीजियस एक्टिविटीज, ये सारी चीजों को आपको देखना है, इसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको डेफिनेटली कभी चेंज हो जाएगा, कभी उलट पलट हो जाएगा, आपको नहीं पता, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि फैमिली स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ फैमिली रहता है, मतलब आप देखोगे कि जैसे कि जिसको कि हम बोलते हैं कि क्या मतलब फैमिली के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं उसको लाइक जॉइंट फैमिली है आपका, जॉइंट फैमिली जहाँ पे कि सब लोग मिलकर रहते हैं, है कि नहीं। और न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मतलब जस्ट फादर मदर और 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप कौन से फैमिली में स्ट्रक्चर क्या है, अगर जॉइंट फैमिली का है तो उसके हिसाब से अलग रहता है, और नहीं तो इंडिविजुअल मतलब न्यूक्लियर फैमिली है तो उसका अलग रहता है। तो ये जो चीजें है ना, सोचो कि न्यूक्लियर था अभी जॉइंट बन गया, तो उसके हिसाब से अगर वो लोग चेंज हो गए तो उसके ऊपर उसका इंपैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आएगा, तो वो चीजों को भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है वर्क एथिक्स, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया वहां पे मीडिया कौन सा मीडिया पर्सन, ओके, मीडिया एंड रोल ऑफ मीडिया, है कि नहीं। मीडिया मतलब क्या है, मीडिया मतलब जो प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, जो लोग की मतलब न्यूज को इधर उधर करवाते हैं, है कि नहीं। एक कंपनी में कुछ हुआ वो लोग पब्लिश करवाते हैं आप लोगों के लिए, लोगों के साथ कुछ हुआ, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया तो वो लोग कंपनी को बताते हैं, तो उसके हिसाब से वो, तो मीडिया की वजह से हमें पता चलता है दुनिया भर का न्यूज, जिससे हमें पता चलता है, दैट इज आवर रेडियो, टीवी, फेसबुक एंड सोशल मीडिया, कुछ भी ले लो, सोशल मीडिया और नहीं तो प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया। अभी 3 टाइप के मीडिया होते हैं, पहले 2 होते थे, है कि नहीं, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया। प्रेस मीडिया मतलब जो कि आपको आता है क्या कि जो न्यूज आता था, न्यूज चैनल आता था, वो प्रेस मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जो कि न्यूज़पेपर, है कि नहीं, आर्टिकल, मैगजीन, वो सब आता था। अभी तीसरा हो गया क्या, वो जो सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया मतलब आप लोग, आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई एक सोशल साइट में अकाउंट है तो आपको सारे के सारे न्यूज पता चल जाएंगे, है कि नहीं। तो ये मीडिया का भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि मीडिया आपके अंडर में नहीं रहता है कि नहीं। वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, उसको आपको टैकल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैस्ट सिस्टम, क्योंकि वहां पे जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, देयर आर वैरायटी ऑफ कैस्ट सिस्टम। आपको पता है कैस्ट के लिए, कैस्ट के मतलब जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग और वी आर कंसिडरिंग द कैस्ट सिस्टम, क्योंकि कैस्ट के हिसाब से आपको पॉलिसी बनाना पड़ता है कि नहीं। मतलब कैस्ट लेवल जनरल के लिए आप कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकते हो, और एससी एसटी के लिए आपको कुछ कम चार्ज करना है, ओबीसी के लिए मीडियम करना है। तो ये हो गया कैस्ट सिस्टम, है कि नहीं। आप कोई भी बिजनेस करो, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, विदाउट दिस थिंग यू कैन नॉट सस्टेन, ओके। और ये सारे कब कैसे चेंज हो जाए, गवर्नमेंट इसको कब कैसे चेंज कर दे, देयर इज आल्सो नो गारंटी। तो आपको कंसिडर करके रहना है, अगर कुछ चेंज हो गया तो उसके हिसाब से आपको चेंज होना है, ये लोग आपके हिसाब से चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है कैस्ट सिस्टम, ओके क्लियर। और क्या होता है, और होता है कि द रिजर्वेशन सिस्टम तो हो गया, ठीक है। और बाकी रहता है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग मतलब नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल फेस्टिवल्स, ये वगैरह रहता है, ठीक है। आगे समझ में। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो क्या होता है कि ये जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं। देन और भी है एक और लाइक क्या है, फेस्टिवल्स, है कि नहीं। फेस्टिवल्स अगर आप देखोगे कि सोचो कि आप एक मुस्लिम बेस्ड कंपनी हो, आप एक मुस्लिम बेस्ड कंपनी हो, बट आपके कंपनी में ज्यादा हिंदू काम करते हैं, तो आपको मतलब ना चाहते हुए भी आपको जो हिंदू के जो फेस्टिवल्स होता है उसमें आपको डेफिनेटली हॉलिडे डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपके ज्यादातर लोग वो फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो यू हैव टू फॉलो दोस थिंग्स, क्लियर। सो दोज आर आल्सो थिंग्स, फेस्टिवल्स आल्सो दोस थिंग्स बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू फॉलो। अगर सोचो कि आप एक मुस्लिम बेस्ड कंपनी हो, आपका बिजनेस हिंदू सोसाइटी में है, तो यू हैव टू फॉलो देयर प्रोसीजर्स, देयर फेस्टिवल्स। अदरवाइज आप अगर बोलोगे कि आपको मतलब दशहरा में भी आपको काम करने के लिए आना है, तो कोई आएगा नहीं, आएगा डेफिनेटली। तो आप ओपन करोगे, कोई नहीं आएगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू एडजस्ट। आपको देखना है कि वो लोग नहीं आएंगे, चलो मैं भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं लोगों उनको प्रेशर करूंगा तो भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि पूजा है उन लोगों का, ठीक है। सो दोज आर द थिंग्स, द सोशल कल्चरल थिंग्स, क्लियर, जो जिसको कि आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, उसके बारे में आपको सोचना है और उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। आई होप आपको ये सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। सो द थर्ड वन इज आवर लीगल एनवायरनमेंट। तो ये आपको डेफिनेटली पता है स्टूडेंट्स, लीगल मतलब द एनवायरनमेंट ऑफ लॉ। लॉ मतलब द रूल्स, द रेगुलेशंस, द कोड ऑफ कंडक्ट, द एथिक्स व्हिच आर फॉलोड इन द सोसाइटी। सोसाइटी में ये सारे चीज क्यों फॉलो होते हैं, ताकि सोसाइटी में पीसफुली एवरीथिंग मतलब सब कुछ हो पाए, सब लोगों को सब कुछ बेनिफिट मिल पाए, और विदाउट एनी हार्मफुल इम्पैक्ट टू एनीवन, टू एनी पर्सन, एनी एनिमल, एनी नेचुरल थिंग, किसी को भी कोई हार्मनेस ना होना चाहिए। और जो भी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल सपोर्ट एंड फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी नो क्रिमिनल एक्टिविटी, नो डुप्लीकेसी, नो चीटिंग, नो फ्रॉड, नथिंग, है कि नहीं, ताकि सोसाइटी पीसफुली आगे बढ़ता जाए, ग्रो करे, डेवलप करे, हम भी करे, हमारे साथ सारे डेवलप करें। बट फिर भी सोसाइटी में क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं सार्कास्टिक वे में बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स करते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो उन लोगों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट इज क्रिएटेड ए नंबर ऑफ लॉ, ओके, ताकि हम लोग क्या करेंगे कि वो जो चीजों को फॉलो करेंगे डेफिनेटली, ताकि हम बाई डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली किसी को भी कोई भी हार्म ना कर पाए। अगर हार्म करेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी में हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दोज लॉ, अकॉर्डिंग टू दोज काइंड ऑफ कंडक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वी गेट पनिशमेंट, ठीक है। सो दैट इज द लीगल एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई एक बिजनेस ओपन होता है, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बर्थ,
बर्थ से लेके जब भी वो कंटिन्यू करता है, आगे आगे बढ़ता है, ए नंबर ऑफ लॉ, जो कि है आपका जो बिजनेसमैन होता है, जो मैनेजमेंट टीम होता है, उनको क्या करना पड़ता है, ए नंबर ऑफ लॉ दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू फुलफिल द प्रोसीजर, द रेगुलेशंस, एवरीथिंग व्हाइल दे आर डूइंग बिजनेस। अगर आप वो चीजों को फॉलो ना करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट आपको बैन कर देगा, आपके बिजनेस को बैन कर देगा और फिर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। एंड आपका जो ऑब्जेक्टिव था फुलफिल करने का कि मुझे प्रॉफिट पाना है, कंपनी का नाम करना है, सोसाइटी में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, वो का सारा ठप हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? सो देखो, जैसे कि जब भी एक कंपनी शुरू होता है, फ्रॉम इट्स बिगिनिंग देयर आर नंबर ऑफ लॉ। जैसे कि आपको पता है कि देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल लॉ, आपको मालूम है कि नहीं? कमर्शियल लॉ, बहुत सारे कमर्शियल लॉ होते हैं जो कि हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस मतलब लॉ को रिलेटेड, जो कि है आपको कि अगर आपका पार्टनरशिप करना है कि नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट होता है कि नहीं, कंपनीज एक्ट होता है, ओके, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। देन आपको अगर कुछ भी करना है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है कि नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्ट है, ओके। और ऐसे का ना नंबर ऑफ, आपको मालूम है, वी नो ऑल द व्हाट आर द कमर्शियल लॉ, दैट इज वी हैव टू फॉलो, है कि नहीं? और ये जो लॉ कब कब क्या क्या चेंज हो जाए, देयर इज नो गारंटी। व्हाई वी कॉल दैट दिस फैक्टर आर अनकंट्रोल्ड बाय अस, बिकॉज ये कब चेंज हो जाए, गवर्नमेंट कब इसको चेंज कर दे, गवर्नमेंट अपने रूल के हिसाब से, अपने मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कब क्या चेंज कर दे, वी हैव नो आइडिया, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें एवरी टाइम बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी हैव टू लुक एट द मतलब द प्रीवियस सेक्शन, द पास्ट, द थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज गोइंग, दैट द गवर्नमेंट डील विथ, एंड वो फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है, उसके हिसाब से हमें अपना पॉलिसी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि बहुत सारे कमर्शियल लॉ तो होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे सोसाइटी से रिलेटेड, है कि नहीं, सोशल जस्टिस के लिए भी बहुत सारे लॉ होते हैं, है कि नहीं? जैसे कि आपने ले लो हिंदू लॉ, हिंदू का अलग अलग रहता है कि नहीं? और नहीं तो आपको क्या पॉल्यूशन के लिए एक्ट है, ओके, पॉल्यूशन के लिए भी एक्ट है, ओके। और क्या है, लाइक इंश्योरेंस लिए है, इंश्योरेंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस यू हैव टू डू, ओके। लाइफ इंश्योरेंस ये चीजों को लेके, लाइफ के लिए, आपके मतलब लोगों को गाड़ी के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, सबके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो कमर्शियल लॉ है, बट दोनों में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ भी लॉ हो गया। तो ये सब लॉ क्यों बना है, डेफिनेटली सिंपल रीजन, सोसाइटी में जस्टिस पाने के लिए, सोसाइटी में पीसफुली सब कुछ करने के लिए, और जो भी अगर कुछ वो लॉ को, वो रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करता है तो वो चीजों को उनको ट्रीट करने के लिए हमें लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए मैनेजमेंट टीम, वी हैव टू फॉलो ऑल दोज रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली। अगर कहीं पे भी आपको देखा गया कि आप अगर कोई भी रूल अगर तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, है कि, तो क्या कहते हैं कि आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जाता है, जो कि बहुत ही हैवी अमाउंट रहता है, इधर मॉनिटरी, और नहीं तो आपको बिजनेस भी बंद कर सकते हैं, आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। सो यू हैव टू फॉलो, देयर इज नो अदर ऑप्शन, you have to follow all the legal things, all the legal rules, those are framed by government, by the administrator जो ही हैं अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अगर कुछ भी लॉ बनाता है कंपनी के रिलेटेड, सोसाइटी को रिलेटेड, आपको एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो, बिकॉज यू आर ए कंपनी एंड यू आर रनिंग योर बिजनेस इन द सोसाइटी, सो यू हैव टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स। इफ यू आर इग्नोरिंग, इफ यू disobey those things, then they will definitely punish you with monetary and by cancelling your license, which is a very negative impact on your business. So to avoid those things, to avoid any negative impact, you have to follow the rules regulations, and in case of anything change in the society, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब गवर्नमेंट एक चेंज होता है, ठीक है, जब भी एक गवर्नमेंट चेंज होता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से रूल भी चेंज होता है कि नहीं? जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब भी अपना जो यूपीए का गवर्नमेंट था, क्या क्या रूल थे, सब लिबरली चल रहा था, बट अब जब एनडीए का गवर्नमेंट आ गया, बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, बीजेपी लीड, तो सारे के सारे रूल चेंज हो गए, है कि नहीं? जैसे कि आप देखो फॉर सिंपल एग्जांपल, ये जो रूल आपको कैसे इंपैक्ट करता है कि ले लो, जब मैं जो कि मैं एग्जांपल बेस्ट लेता हूं, आपको पता है कि पहले BS3 का गाड़ी चलता था, BS3 मतलब
भारत स्टैंडर्ड 3, जिसका कि लो स्टैंडर्ड रहता था, स्टैंडर्ड थोड़ा कम रहता था ऑब्वियसली, जैसे कि पोल्यूशन ज्यादा होते थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये गाड़ी को पूरा का पूरा बंद कर दिया, ये जो ये टाइप के गाड़ी को। सोचो आप, अगर आपका कंपनी अगर BS3 का बहुत सारे मतलब मोटर व्हीकल प्रोड्यूस कर चुका है और यहाँ पे बैन हो गया, तो अभी क्या होगा, डेफिनेटली लोग तो ये नहीं खरीदेंगे। ये आ गया क्या, BS4 का गाड़ी आ गया है कि नहीं, तो लोग किसको खरीदेंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बाय BS4 व्हीकल, नॉट BS3 व्हीकल। तो यहाँ पे जो BS3 व्हीकल वाले थे उन लोगों का पूरा लॉस हो गया, क्योंकि उन लोगों को मतलब वो सारे चीजों तो प्रोडक्ट हो गया है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा, चलो रॉ मटेरियल से चलो हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं और इंजन को मॉडिफाई कर देंगे, BS4 मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। बट जो ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो गाड़ी रेडी है मार्केट में सेल होने के लिए, वो तो कोई अभी नहीं खरीदेगा, तो वो सारे क्या हो गया, उन लोगों को लॉस हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज ये लोग इस चीज को कंसिडर नहीं किए, है कि नहीं। तो बिफोर प्रोड्यूसिंग BS3 व्हीकल इन ए लार्ज क्वांटिटी, यू शुड कंसिडर कि गवर्नमेंट का रूल कुछ चेंज होने वाला है क्या, तो हम थोड़ा कम कर देते हैं प्रोडक्शन। अगर ये करते तो आपको नहीं होता इतना इम्पैक्ट, बट आपको हो गया बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट लॉ चेंज, व्हाट लॉ शुड चेंज। ओके, अभी ले लो कि इंश्योरेंस कंपनी का ले लो, इंश्योरेंस जब भी अभी जो आया, जो अपना एक लॉ जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट आ गया, है कि नहीं। मोटर व्हीकल को रिलेटेड जो भी एक्ट आया उसमें क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट हो गया, लोगों को थोड़ा कम हुआ, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि पहले इंश्योरेंस मतलब इतना मैंडेटरी नहीं था, है कि नहीं, दैट टू बी आप फर्स्ट पार्टी करोगे तो भी चलता था, बट अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। आपको पता है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी मतलब सिर्फ आपके लिए, थर्ड पार्टी मतलब आपने जिसको टक्कर दिया, जिसको लगाया, है कि नहीं, जिसको लॉस हुआ उसके लिए। तो अभी क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्टी डेफिनेटली आपके लिए होता था तो चलो 1000 रुपए में हो जाता था, अभी थर्ड पार्टी 1500-1600 रुपए आपको देना पड़ता है। तो ये जो 500-600 एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, तो आपको लॉस हुआ कि नहीं लोगों को, और कंपनी को बेनिफिट हो गया, है कि नहीं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको बेनिफिट हो गया ना, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे लॉ होते हैं, जब भी कुछ चेंज होता है एक्ट का, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको इंपैक्ट करता है, ठीक है, और हम अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक डिसीजन। अगर आप उसके हिसाब से एडजस्ट ना करो तो मार्केट से आउट। ओके, क्लियर। तो ये से जो बिजनेस को लेके बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉ हैं, लीगल एनवायरमेंट वी कैन से, द कमर्शियल लॉ, द इंडस्ट्रियल लॉ भी होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉ भी होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ मतलब जो कि लाइक मिनिमम वेजेस, ठीक है, मिनिमम वेजेस आपको देना है, ठीक है, और आपको कंपनसेशन देना है, अगर कुछ लॉस हो गया तो आपको कंपनसेशन देना है, ठीक है, ग्रेच्युटी प्रोवाइड करवाना है, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, सुपर एन्युएशन का होता है, ऐसे नंबर ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है। ये सारे तो अभी आपको मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज इंपॉर्टेंट दैट लीगल, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लीगल एनवायरमेंट, एंड ये आपको कैसे इंपैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली, नेगेटिवली, एंड यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दिस changes in the environment, and they are directly impacting, indirectly, directly impacting your business, clear, and so you have to adjust yourself according to the change, ठीक है, clear, आ गया समझ में, बस। next हम देखेंगे the fourth one. So student, the fourth one is the political environment. Okay, so political environment आपको जैसे पता है, पॉलिटी मतलब पॉलिटी इज ईच एंड एवरीवेयर, है कि नहीं, मतलब कंपनी के अंदर भी पॉलिटी होता है, कंपनी के बाहर भी पॉलिटी होता है। कंपनी के अंदर अगर हम लेंगे कंपनी के अंदर, तो दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय अस, क्योंकि उससे हमें इतना इंपैक्ट नहीं आने वाला है। कंपनी के अंदर मतलब कौन डायरेक्टर बनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा, है कि नहीं, किसके ऊपर किसका ज्यादा पावर आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाएगा, वहां पे नेपोटिज्म होगा कि नहीं, है कि नहीं, और इक्वालिटी इक्विटी के हिसाब से काम होगा, क्लियर। और बाकी कि कोई भी डिसीजन लेने के टाइम पे मतलब किसका प्रेफरेंस क्या है, किसको स्कोप देंगे, किसको स्कोप नहीं देंगे, ये सब कंपनी के अंदर में भी पॉलिटी चलता रहता है, बट जो कि हमारे टोटली कंट्रोल में होता है, क्योंकि जो ओनर होता है उसके हिसाब से सब कुछ होता है। बट कंपनी के बाहर जो कि है अपना माइक्रो फैक्टर, मैक्रो एनवायरमेंट, वहां पे भी एक पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है जो कि हम सबको कंट्रोल करता है कि नहीं। पॉलिटिकल एनवायरमेंट मतलब आपको मालूम है कि हम लोग सोसाइटी में क्या करते हैं, सोसाइटी में सब कुछ काम बनने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ठीक है, इन ए मतलब लोकल वे और इन ए सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। तो इसके हिसाब से हम एमपी चूज करते हैं, एमएलए चूज करते हैं, एमएलए को लेके
मतलब ये जो अपने एरिया में, हम जो एरिया में काम कर रहे हैं, द लोकल एरिया ले लो, और नहीं तो वो स्टेट ले लो, और नहीं तो वो कंट्री ले लो, जो कि हम बोलते हैं सेंटर। तो हम कौन से कंट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे कौन सा पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है, कौन उसको मतलब फॉलो कर रहा है, दैट मींस हु इज द रूलिंग पार्टी, हु इज द अपोजिशन पार्टी, किसके पास पावर ज्यादा है, उसका पॉलिसी क्या है। जैसे कि द नेचर ऑन आइडियोलॉजी, नेचर मतलब उनका काम करने का तरीका कैसे रहता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को पता है कि पहला अपना जो गवर्नमेंट था क्या था, वो था यूपीए का गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस लीडर यूपीए गवर्नमेंट। उनका काम करने का नेचर, आइडियोलॉजी, एवरीथिंग अलग थे। आइडियोलॉजी मतलब वो लोग क्या क्या फॉलो करते थे, किसको बिलीव करते थे, किसको बिलीव नहीं करते थे, उन लोगों का लीडर कौन थे, वो वगैरह। अभी आ गया एनडीए गवर्नमेंट, इन लोगों का नेचर पूरा अलग रहता है, उन लोगों का लीडर्स, नेचर, एवरीथिंग अलग, ठीक है। तो दोनों का काम करने का तरीका अलग रहता है। तो दोनों के हिसाब से इंपैक्ट किसके ऊपर आता है, डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी ही, जब आपको पता है जब भी एक नया गवर्नमेंट बनता है तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब अपने क्यों, देखो हर एक गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज दोज फ्रेम गवर्नमेंट एंड रूल्स फॉर स्मूथ कंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड ए स्टेट। कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए, स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कि ये रूल सही नहीं है, इसको चेंज कर दो, ये लॉ अच्छा नहीं है, चेंज कर दो, ये कंपनी बुरा काम कर रहा है, उसको बंद कर दो, ये एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसको बैन कर दो। ये सब वो डिसीजन वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि लॉ यही बनाते हैं, गवर्नमेंट ही बनाता है, ठीक है। मींस यू कैन सी दे आर द वेरी मच पावरफुल पर्संस इन द सोसाइटी। उसके हिसाब से हमें अपना बिजनेस करना पड़ता है। वो लोग अगर बोल दिए कि BS3 गाड़ी बंद तो बंद, लिकर बंद तो बंद, सिगरेट बंद तो बंद, है कि नहीं, इंश्योरेंस कंपलसरी तो कंपलसरी, हमें जो भी वो लोग बोलेंगे हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो उन लोगों के हिसाब से भी हमारे बिजनेस में डिफरेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, द नेचर एंड आइडियोलॉजी मतलब वो लोग क्या फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते हैं इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो जो गवर्नमेंट बनता है वो सेंट्रल, मतलब उनका जो पावर होता है सेंट्रल लेवल में होता है, और नहीं तो स्टेट में, और नहीं तो लोकल गवर्नमेंट, आपको पता है कि नहीं। लोकल में आप देखे होंगे कोई छोटा पार्टी रहता है जो कि लोकल एरिया में उन लोगों का पावर रहता है। जैसे कि लोकल एरिया मतलब म्युनिसिपैलिटी में ले लो, और नहीं तो पंचायत में ले लो, उन लोगों का पावर रहता है। बट अगर आप ऊपर चले जाओ स्टेट लेवल में, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट अलग पार्टीज होते हैं जो कि ओनली स्टेट में फंक्शन करते हैं, वो ओनली स्टेट में मतलब अपना गवर्नमेंट बनाते हैं, उन लोगों का पॉलिसी अलग रहता है। और नहीं तो सेंट्रल ओरिएंटेड, सेंट्रल मतलब ले लो अगर बीजेपी सेंटर में भी है, अगर बीजेपी एक स्टेट में भी आ गया तो दोनों का पॉलिसी सेम हो गया, है कि नहीं। तो वो लोग जो करेंगे स्टेट में भी वो फॉलो होगा, तो आपको इतना मुसीबत नहीं होगा। बट ले लो सेंटर में एक है, स्टेट में एक आ गया, तो आपको अलग आ गया टेंशन, क्योंकि सेंटर बोलेगा कुछ ये करो, स्टेट बोलेगा ये करो, तो इतना सारा काम करने में आपको मतलब ज्यादा खर्चा होगा, और यू हैव टू टेक ए लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द मींस ए लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बिजनेसमैन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकल में अलग अलग है, तो उन लोगों का भी लोकल एरिया में अलग अलग रहेगा, है कि नहीं, कि ट्रांसपोर्ट के लिए ये करो, लाइटिंग के लिए वो करो, पॉल्यूशन के लिए ये करो, तो डिफरेंट वेराइटीज आ जाएंगे, ठीक है। देन स्टेबिलिटी मतलब कौन सा गवर्नमेंट कितना टाइम रहता है, इसको भी हमें सोचना पड़ता है। कि ले लो अभी फॉर एग्जांपल बिजनेस आर डेफिनेटली सपोर्ट डिफरेंट बिजनेस, different political party, and the political party also support different businessmen, ठीक है। तो ले लो अभी सोचो कि एक गवर्नमेंट है, उन लोगों ने हमें सपोर्ट है, उन लोगों का सपोर्ट हमें, वो जो गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने ना एक प्लान पॉलिसी बनाया जो कि 10 साल तक है चलेगा, उसको मतलब उसका प्रोजेक्ट का टर्म है 10 ईयर्स का, ओके 10 ईयर्स का, आज शुरू किया 10 ईयर चलेगा। तो हमको मतलब हम लोग सोचे कि चलो ये जो पॉलिटिकल पार्टी का हमें सपोर्ट है, हमें वो सपोर्ट करेगा, हम 10 साल में खत्म कर देंगे। बट स्टेबिलिटी अगर नहीं मिला, 5 साल के बाद अगर वो गवर्नमेंट चेंज हो गया, उसका कोई और दूसरा गवर्नमेंट आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बिजनेस को बड़ा ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये सोचो, ये तो आपको सपोर्ट कर रहा था, बट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो आपको 5 साल हुए थे, 5 साल में तो प्रोजेक्ट डेफिनेटली 50% कंप्लीट हुआ होगा, और 50% के लिए और 5 साल लगता। अब क्या हो गया, वो आके बंद करवा दिया, तो आपका जो 50% आप इन्वेस्ट किए थे पूरा का पूरा गया, बर्बाद हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इसके हिसाब से भी आपको काम करना पड़ता है कि गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी क्या है। यू हैव टू टेक डिसीजन, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू प्लान पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू नेचर, आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चर, मींस यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स।
while you are taking your decision, और ये जो सारे चीजें आपको इम्पैक्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, somehow directly somehow indirectly. नेक्स्ट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस क्या रहता है, जैसे कि मतलब इलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, ओके और मतलब पार्टी सिलेक्शन कैसे होता है, पार्टी में कौन हेड करेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो लोग भी उन लोगों का है कि नहीं. अगर कोई अच्छा आदमी एक बन गया चीफ मिनिस्टर है के, अगर एक एलिजिबल पर्सन तो अच्छा है. अगर कोई ऐसे सीनियरिटी के हिसाब से किसी को भी ले लो तो सीनियरिटी के सब एक आ गया बट उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लम हो गया. ठीक है, बाकी फॉर्मुलेशन कैसे वो टीम वो पार्टी कैसे फॉर्मुलेट हुआ, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है, ये भी सारा रहता है. ठीक है, और पार्टी बिलीव एंड सपोर्ट, पार्टी किस किस के ऊपर बिलीव करता है, मतलब कौन से गॉड के ऊपर बिलीव करता है, कौन से कम्युनिटी को बिलीव करता है, कौन से रिचुअल थिंग्स को बिलीव करता है, वो लोग डेफिनेटली उसके सपोर्ट में ही काम करेंगे और उसको अपोज करने वाले काम को सारे के सारे बैन कर देंगे. तो आपका बिजनेस अगर सपोर्टिव वाला प्रोडक्ट है तो आपको फायदा हो गया, अगर अपोजिंग वाला प्रोडक्ट है तो आपको हो गया लॉस. ठीक है कि नहीं. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब काउंसिल मतलब जो मिनिस्टर कौन सा काम किस किस को दिया गया है कि नहीं. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे हैं और कोऑपरेटिव है तो एक भी अगर लॉ को पास करने के लिए आएगा तो सारे के सारे हाँ बोलेंगे, मतलब अगर वो सेट हो जाएगा. अगर उनके बीच में मतलब अगर अच्छा रिलेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो एक आएगा अच्छा चीज वो भी बनेंगे ना 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 करेंगे, मना करेंगे, वो अच्छा वाला भी बंद हो जाएगा. देन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन में ट्रेड करने के लिए, फॉरेन ट्रेड करने के लिए उन लोगों का पॉलिसी क्या है कि नहीं, पॉलिसी क्या है. मतलब सोचो कि आपका कंपनी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, ठीक है, अगर फॉरेन पॉलिसी उन लोगों का अलग है, मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो लोग बैन कर देंगे, नहीं नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो गया आपका बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो गया है कि नहीं. क्लियर. तो वो होता है इंपोर्टेंट. एंड द पावर ऑफ पार्टीज, क्योंकि पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी का जितना पावर वो उतना स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है और उसके हिसाब से ही वो लोग सारे के सारे डिसाइड करते हैं. सो द एवरीथिंग as belongs to the political environment. So before you have take any decision, any plan, any policy, business के हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है आपके लोकल एरिया में, आपको स्टेट में, सेंटर में, फॉरेन में भी, ठीक है, आपको एवरीथिंग यू हैव टू कंसीडर, देन ओनली यू कैन टेक ए लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन. अगर उसको लेके बनाओगे तो आपको फायदा रहेगा. यू हैव नॉट टू फेस any difficulty, but if you will not consider those things and take decision, then you definitely have to face a lot of problem. आ रहा है समझ में? क्लियर. सो इसके हिसाब से ही हमारा काम चलता है कि बिजनेस को सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करो, उसको एनालाइज करो, उसको देखो, जानो, समझो, देन डिसीजन लो ताकि आपको फायदा मिलेगा. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द 4 फैक्टर. बाकी हमारे और 4 फैक्टर बच गए, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, उसमें हमारा खत्म हो जाएगा द मैक्रो फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस टू लिसन टू अस एंड hope to see you in the next class with a new concept. Thank you.